Okay, hi everyone. Today we have done a workshop on street photography, and it was a wonderful experience with Sumit. So we have done this session at Monday, and we have covered from Shaniwar Vada to Monday. It was a wonderful session, and it was a very informative, and it was a very good learning for me. So Sumit is a very technically very sound person, and he has given a very good insights about some of the camera settings, what are the compositions, and maybe on the exposure compensation, and he has given a very good insight on all the three which we called as exposure triangles, that is shutter speed, your ISO, and the aperture, and good camera settings for capturing the street moments. Capturing the street moments are very important when you are doing your street photography, and we have captured very wonderful moments during this session. And I will give a very great thumbs up to Sumit for organizing all these workshops, and it is very informative, and I will request everyone, those who are looking at this video, to join this workshop and to be a part of Sumit Photo World. Thank you so much. Hey, hi, my name is Harshal. I'm a software professional. I own a Nikon camera. It's been a few years I'm owning it, but I do photography as a hobby, not a professional, I'm an amateur. Too shy to go out and click pictures, so I joined today's Sumit street photography workshop, and it's been such a pleasure with him. I spent last few hours clicking pictures on the road. I feel confident about doing this again. He has helped me a lot. He has given personal attention and shared details about basics of fundamentals of photography, and definitely I think I will be much more confident coming out and shooting pictures next time. And thanks a lot, Sumit. This is the first time I did this street photography. Before this I did the nature photography workshop with him. That was also a very nice experience. Along with the workshop, I also got to meet a lot of new people. So all in all, a very good time. I learned a lot of things, and I think this workshop has definitely improved my photography. And yeah, at least I can say I'm now an amateur photographer. Yeah, thank you so much. Hello everyone, my name is Amit Singh Rawat, and I own a Fuji X-T4. I use it primarily with 23 f2 and with my zoom lens 16 to 80 f4, and I like capturing streets and the genre which is called as street photography. I am not sure whether I do street photography or not, but I would like to call it that way. And this is my first workshop with Sumit Photo World, and so far it has been a great experience, and the location is very amazing. Means it's been almost 6 to 7 months since I am here in Pune, but I am coming to this location for the very first time. Thank you, Sumit ji. Welcome you all. So this is street photography workshop, and we will try to cover camera settings, conceptual knowledge की composition कैसे करना है, and how to observe your subject. ये मेरा कुछ key notes है जो already मैंने बनाया हुआ है. So I will cover all these points. So little bit introduction about street photography क्या है, that whenever we are taking photo, we should make sure that we are covering some story kind of conceptual, जैसे कुछ रहता है ना, कि you can see the photo and you feel like कि उसमें कुछ story है, and just ask yourself कि what you are trying to capture, what you are trying to show. हमारा street photography में एक basic जो concept रहता है, we have to show the environment. Next day, maybe in the first day we will not get that many good quality photos, but next time जब हम same place को visit करेंगे, we will be more ready. तो उसका mostly reason क्या रहता है कि हम शुरू में बहुत जल्दी go through करते हैं, but अगर slowly observe करते हुए चलेंगे धीरे धीरे, you will find a lot of opportunity. And उसमें एक trick रहता है कि act like you are not photographing. So try to be as casual as normal as possible, and जब तक मूवमेंट ना मिले कि इट्स रियली डिजर्विंग ए फोटोग्राफ,
उसको नीचे रखो, ऊपर लाओ, फोटो खींचो एंड देन अगेन डाउन. 1 or 2 years, people are okay until unless they are not doing anything means like which is illegal. Actually, I used to tell them I am making my personal project. और कुछ नहीं तो मिला. I am making my personal project. For those, I am creating these photos. That's it. किसी स्कूल के लिए नहीं, किसी न्यूज़पेपर के लिए नहीं. My personal projects. So they are happy with that. What I have seen means like if people are doing something in a public space, I think it should not be a problem. I can still recall a day in means like Chandni Chowk. I was walking through, and a guy was smoking pot over there. So I took the photo and he didn't say anything. So means like if he is doing on a public platform, so why can't I take a photo, right? So that's my theory in this. आपका? So this is the first time I'm doing this, but yeah, as you said, if somebody asks, I probably will say that okay, I'm just experimenting. This is the first time I'm doing something. How is it? I will ask them, see your picture, how does it look like? So I think, especially Monday, I'm from Pune, right? So I can speak in Marathi with them. More comfortable. Cool. Yeah. Advantage. We already attended one workshop. Yeah. So I generally tell them that if some objection is there, so I'll tell them this is just a project of street photography. That's it. that's good. And in the second half, when we do the practicals, actually I do 1 hour now, and then we'll have a little break for group photo and certificate distribution and all, and then we'll do 1.5 hour, one more session. So in that session, I usually ask people to take a portrait photo. Portrait means the close-up headshots. You are focusing on the heads to capture the details of facial features. So I thought it's better to have it handy with me. कि कुछ भी छूटे ना. And I'll be more focused on other things also. Let's start. मेरा कुछ कंपोजिशन ऐसा रहेगा. Today I'm going to capture my subject with more details. मेरा फोकस उस पे. While we are going to Monday market, we will take only 10 halts in between. Maximum 10. Each halt will be 1 minute. आपको 10 बार रुकना है मंडई मार्केट के रास्ते में, और 10 मिनट में जब 10 बार रुकेंगे हर 1 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा के लिए नहीं. ओके. आई वॉन्ट यू टू टेक 3 फोटोज. जिसके भी आप सब्जेक्ट की फोटो ले रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू टेक 3 फोटोज ओनली. अलग एंगल से हो सकती है, सेम एंगल से होती है, वट एवर, बट 3 फोटोज. इनके लिए जो मेरे को कंपोजिशन ठीक मिला तो ये था. कितने फुल जूम पे नहीं है? While taking, I'm doing full zoom. अच्छा. So for example, sort of हाँ, ठीक है. 140. 140 नहीं, फुल पे जाना है. आपको जो ये फील है ना, वो फुल पे ही आएगा. वाओ. जस्ट सी हिज फोटो. She was very happy. ऐसे ही अपॉर्चुनिटी होता है. दिस वाज माय शॉट. Very nice. थोड़ा नीचे से और होता तो शायद अच्छा लगता, बट ठीक है, कटा नहीं है. वी हैव टू टेक केयर कि फीट्स नीचे से कटने नहीं चाहिए. This is where you said बहुत टाइट है ये. the rule of third, where you have हाँ. the space. यस. तो मैं अपना रोड्स का भी एनवायरनमेंट दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे. आई वांट टू शो द लेडी. बट अगेन हमारा ओरिएंटेशन, फोटो का ओरिएंटेशन क्या रहना चाहिए? What should be orientation? Aspect ratio, landscape, portrait. When we should go for portrait? When we should go for wide landscape? Most of the time we will go landscape. Portrait only when it really required you to go do portrait.
हम यहाँ पे मोबाइल के वॉलपेपर के लिए फ़ोटो नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट हम यहाँ पे बड़े लेवल पे फ़ोटो के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट विल बी वाइडर ओनली एंड द ओनली रीज़न विच आई आस्क वाई आई आस्क दिस वाइडर फ्रेम, क्योंकि मेरे को जब पहली बार किसी एजेंसी ने कॉन्टैक्ट किया था ना, दे टोल्ड मी क्लियरली इन देयर कॉन्ट्रैक्ट कि आपके सारे फ्रेम वाइडर चाहिए। एजेंसीज ओनली नीड वाइडर फ्रेम्स, नॉट पोर्ट्रेट। वो खुद पोर्ट्रेट करते हैं अगर रिक्वायरमेंट होती है, बट दे नेवर आस्क फॉर द पोर्ट्रेट। डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है वाइडर में। नहीं कंपेयर टू दिस वन, इसमें आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट को, बट एजेंसी डोंट वांट टू यू टू रिस्ट्रिक्ट द एनवायरनमेंट। वो उनको वाइडर चाहिए। अगर जस्ट इमेजिन यू आर वॉचिंग ए मूवी इन अ पोर्ट्रेट, विल यू एंजॉय? आपको वाइडर में ही अच्छी लगेगी मूवी। हम पोर्ट्रेट में मोस्टली किस केस में जाते हैं? जब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं, मॉडल शूट, उसमें भी हम जब देखते हैं कि हाँ मॉडल को हमें पोर्ट्रेट में लेना है, दैट्स द प्राइम रिक्वायरमेंट। फ्रेमिंग का बेनिफिट क्या रहता है? इफ़ वी आर नॉट एबल टू गेट अवर सब्जेक्ट रूल ऑफ थर्ड यहाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्रेम कर दिया ऑटो के इसके साथ, इस पोर्शन के साथ। सो माई फ्रेम इज दिस ओनली, that guy fit right in that. तो ऐसे हम फ्रेमिंग यूज करते हैं। एंड फॉर फ्रेमिंग वी कैन यूज एनीथिंग अराउंड सब्जेक्ट, कुछ भी इसको भी यूज कर सकते हैं ब्लॉक करने के लिए, टू मेक इट दैट। स्पॉट नहीं रखना है। मीटरिंग में तो आपका इवेल्युएटिव रखो। स्पॉट हम उसी रेयर केस में करते हैं जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल शैडो में है और हमें आसपास भी कुछ ज़्यादा ब्राइट एलिमेंट दिख नहीं रहा है। सिर्फ उस केस में हम स्पॉट करते हैं, वो भी बिल्कुल हमारा सब्जेक्ट ही है फ्रेम के अंदर और कुछ नहीं है, वहाँ पे स्पॉट करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा भी मिस हुआ आपका एक्सपोजर खराब हो जाएगा। पर ओवरऑल में दिक्कत क्या है ना, मैं पहले ओवरऑल ही करता था, लेकिन इसमें क्या होता है कई बार जैसे ये लाइटिंग है, नीचे लाइट आ रही है, वो बैकग्राउंड के लिए एक्सपोज करेगा, सब्जेक्ट दिखता ही नहीं है। इवेल्युएटिव में ऐसा नहीं होता है। इवेल्युएटिव आप वही बोल रहे हैं ना, ओवरऑल मैट्रिक्स इवेल्युएटिव, हाँ, तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता जो आप बोल रहे हैं। वो जो आप बोल रहे हो वो आपका सेंटर वेटेड में आ सकता है अगर आपका एक्सपोजर गलत है, स्पॉट में आ सकता है अगर एक्सपोजर गलत है। इवेल्युएटिव में वो पूरे फ्रेम को ही ले रहा है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है पीछे, वहाँ पे इवेल्युएटिव प्रॉब्लम करेगा। बहुत ज़्यादा ब्राइट है, उस केस में आपको सेंटर वेटेड यूज़ कर सकते हैं, बट आपको जो सब्जेक्ट पे ही फोकल पॉइंट रखना है। हाँ, वही करता हूँ, फोकस वो सब एक। बट स्पॉट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। नहीं, आप ये देखो ना, जैसे ये है, तो मैं जैसे इन पे किसी पे भी कर रहा हूँ तो मैं हाँ, ठीक है ना, परफेक्ट काम कर रहा है वो। लेकिन अगर एक बार भी गलत कैलकुलेशन होगी ना, वो पूरा फोटो खराब हो जाएगा। वो तो रिस्क तो बट उसमें ज़्यादा रिस्क है। आप सेंटर वेटेड पे जाओ। अगर इफ यू वांट टू डू प्रेफरेंस ना, गो फॉर सेंटर वेटेड, बट नॉट फॉर स्पॉट। स्पॉट इज टू रिस्ट्रिक्टेड। स्पॉट में क्या रहता है? आपका 1% रहता है, सेंटर में 60% रहता है। 60% फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्रेम, जहाँ पे फोकल पॉइंट है आपका। स्पॉट में 1% है। इट्स 1% टू मच रिस्क। इफ यू आर एबल टू चेस योर सब्जेक्ट ना, यू कैन शिफ्ट टू AFC ऑल्सो, कंटिन्यूस फोकसिंग, AI सर्वो, उस पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। बट योर फोकल पॉइंट शुड रिमेन ऑन दैट सब्जेक्ट, ट्रैकिंग करने के लिए। इसका एक ट्रिक रहता है फोकस करने का। या तो हम अपना AFC यूज़ करके सब्जेक्ट को ट्रैक करें, दैट्स वन थिंग, बट द अदर थिंग इज ट्रिकी थोड़ा सा। उसमें हमें AFS पे सिंगल वन शॉट पे जाना है। आपका कैनन है, निकॉन है ना, AFS पे जाना है। जो हमारा बीच में जो पॉइंट है ना, कोई भी एक, उस पर फोकस करके वहाँ लॉक कर दो। वेट फॉर सब्जेक्ट टू कम देयर, तब फोटो खींचना जब उस पर पहुँचे। तो मैं मोस्टली ये डिवाइस करता हूँ, ये गटर है ना बीच में, ढक्कन, किसी एक पे फोकस करो एंड लेट दैट थिंग्स टू कम अराउंड दैट। बैठ के आई लेवल पे, आई लेवल अगर आप ध्यान रखेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। आपका जो मेन जो व्यू ही आता है ना, जो पर्सपेक्टिव निकल के आता है, वो उसी पे आता है। यहाँ पे आप क्या ट्राई कर रहे हैं कैप्चर करने के लिए? व्हीकल्स को, व्हीकल्स दे आर ऑन रोड, गेट लो। आपको दो फोटो खींचो आप बेशक, एक ऊपर खींचो, एक नीचे खींचो, दोनों को रिव्यू करो, यू विल अंडरस्टैंड। दोबारा गलती होगी नहीं वो। थोड़ा सा और डाउन देना, और डाउन। रोड का भी दिखाना है ना हमने। फ्रॉम देयर प्रॉब्लम।
अभी आप आगे देखो। तो मैंने उनको बोला आप उधर देखो, अब मत देखो, सिर्फ इनको बोला पीछे देखने के लिए। इफ यू कैन मैनिपुलेट द थिंग्स इट्स बेटर, अगर पॉसिबल है, नहीं तो वी हैव टू वेट फॉर दैट मोमेंट। कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, लाइक इट। देखो बस यही देखना पड़ता है। काइंड ऑफ सिमेट्री बट कंट्रास्ट। Amazing. यही जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, अगर पीछे ऑटो नहीं होता ना, आई शुड हैव एडवाइस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा डेप्थ मिलता। बट अगेन वी हैव टू स्टडी द फ्रेम, उसके बाद ही जाना है फोटो के लिए। बाकी लाइंस जो रहता है अपने को फ्रेम में, जैसे कुछ भी लाइंस आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जस्ट कीप फोकस ऑन दोस, कि उनको यूज़ करके वी कैन अलाइन दैट। तो अपना लीड नॉट लीडिंग लाइंस, जस्ट टू मेक द फ्रेम करेक्टिंग, थोड़ा इधर उधर टिल्ट ना हो रहा हो, सीधा रहे। तो ये कॉम्पोजिशन का जब हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू फाइंड दिस फर्स्ट एडिटिंग में। Straight line. तो बेटर है कि कैमरा पे ही उसको ठीक रखें, एडिटिंग में उतना एफर्ट बचता है फिर। Nice. It's a figure T. अरे वाह, मूवीज में दिखाते हैं ना। अच्छा, आपका छोटा है। ये जो मूवमेंट रहता है जब ये करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड होता है, दैट इज द मूवमेंट टू कैप्चर। ये जब होल्ड करते हैं, जब इसको सब बाहर निकलती है, ये वाला मूवमेंट जो होता है। बट एडिटोरियल के आपको लोग पास जाना पड़ेगा। एडिटोरियल में शॉट क्या रहता है, हैंड्स, ओनली हैंड्स। देख रहा देखो देखो इधर। आ गया। कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले ना, आप इसको एडवांटेज ले सकते हैं, इनके और पास जाओ, क्लोज अप हेड शॉट मैंने बोला है, वो यही रीजन है। So, okay, headshot. हेड शॉट मींस शोल्डर्स एंड हेड ओनली। और भी. जोन दिस, इसको हेड शॉट बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन जो पर्पस है ना इस मार्केट में घूमने का, यही है कि हमें लाइट को स्टडी करना है कि लाइट कैसे कैसे सब्जेक्ट पे हम लाइट को एसेस कर रहे हैं। यहाँ पे इन पे लाइट अच्छा है, आपको एक्शन देखना है, तो कुछ एक्टिविटी है क्या। कल फोटो देखे, फोटो
लाइट सोर्स क्या है, एक या दो लाइट, यहाँ पे एक लाइट सोर्स था हमारे पास ये वाला। और सबसे अच्छी टेक्निक होती है लाइट को असिस्ट करने के लिए हमारी आईज होती है। आईज पे आप रीड कर सकते हो कि लाइट सही आ रहा है कि नहीं। सिंपल रूल रहता है फोटोग्राफी में लाइटिंग सेटअप का, वो आईज में लाइट के लिए रहता है कि आपकी आईज या तो 10 to 30 या 20 to 2 देखते हैं। तो उसमें जो लाइट कैच लाइट बन रही है वो या तो 10-12 के बीच में रहनी चाहिए या 12 और 2 बजे के बीच में वैसी रहनी चाहिए। एंगल 10 to 12 और 12 to 2 ऊपर राइट लेफ्ट या राइट की लाइट हो जो मेन लाइट। तो इसमें उनको लाइट को रीड करने में ईजी होता है। हम फोटो खींच के आईज पे जूम करके हम देख सकते हैं ये लाइट किस डायरेक्शन में है, साइड में तो नहीं थी, नीचे तो नहीं थी, ऊपर है तो बड़ा सा वहाँ तक जो लाइट है वो लेफ्ट हैंड साइड से रीड करेंगे। नीचे वाला ये था कि ये बहुत थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, ये की आईज का रिफ्लेक्शन आया, बट दैट वाज नॉट द लाइट सोर्स। ऐसे हमें लाइट को रीड करना होता है फोटो में। इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा उसमें मिनिमल फोटोग्राफी के बारे में, मिनिमल फोटोग्राफी हमारा एक ही सब्जेक्ट है, इसको हमें बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस करनी है लर्निंग के लिए कि हमें सब्जेक्ट को कैसे फ्रेम करना है। बेसिक टेस्ट जो होता है हमारा ऐसे कम से कम उसमें एलिमेंट्स रहने चाहिए। That's how we control exposure in difficult light condition. जहाँ पे लाइट कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श हैं वहाँ पे हमें ये सब फॉलो करना पड़ता है। आपकी मर्जी आप खाना है कि नहीं। हेलो आ जाओ। हाँ मैं सुबह ले लिया था, आया था उधर उस टाइम लाइट अच्छा था। हाँ उस टाइम तो लाइट सही रहेगा। लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा, शटर स्पीड बढ़ा के।
भी देना पड़ेगा। आज तो बहुत अच्छा लगाया आपने। ये ना वडीची बनायची चल देखा अभी करता हूँ। कैंडिड थोड़ी हुआ कैंडिड तो होता है काम करते हुए। फोटो आता कशा टाकायचे ना आपल्याला एक्चुअली क्या आप मेरे साथ साथ अगर रहोगे ना तो उसका सबसे प्राइम जो बेनिफिट ये है कि लोग आपको भी जानेंगे। नेक्स्ट टाइम कभी आप आते हो ना सो दे नो यू बाय फेस, तो बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए भी। अगेन यहाँ पे वैसे सिमिलर कंपोजिशन है, वो स्पॉटलाइट वाला, स्पॉटलाइट का जैसे वहाँ किया था ना सेम वैसा ही वाला है। अच्छा, फोकस लॉकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? फोकस लॉकिंग, फोकस लॉकिंग, हाँ, फोकस लॉकिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम कैसे यूज करते हैं? नहीं, मैं फोकस लॉकिंग की बात कर रहा हूँ। मैं फोकस लॉक करके सिंगल शॉट, वन शॉट, AFS, नहीं, फोकस की बात कर रहा हूँ। कंटिन्यूस फोकसिंग रहता है, एक सिंगल रहता है, एक सिंगल एक मैनुअल है। हाँ नहीं, मैं ये नहीं, ये तो मैनुअल और ऑटो फोकस। हाँ, बटन की बात कर, शटर बटन को प्रेस कर रहे हो, फोकस कर रहे हैं, उसको हम लॉक करते हैं बीच में, जहाँ पे स्क्वायर पीछे ग्रीन हो जाता है, तो हमें ग्रीन करके इसको रिकम्पोज करके फ़ोटो खींचना है। अभी ध्यान रखना है, इसे रिकम्पोज करके फ़ोटो खींचना है।
नहीं 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 वो समझ रहा हूँ आपकी बात, बट मैं क्या कह रहा हूँ, आपने एक जगह अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर लिया, फोकस लॉक भी हो गया, बाद में उसको थोड़ा सा रिकम्पोज करेंगे, उसको अलाइन करेंगे सही से, फिर क्लिक करेंगे। उसमें हमारी क्या प्रैक्टिस होती है, पैरेलल हमको उसको एडजस्ट करना है, फोकस आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जनरली हम लोग स्टूडियो में पोर्ट्रेट में फैशन नहीं जहाँ करना है ना, रूल ऑफ थर्ड, अभी जैसे कि आपका सब्जेक्ट यहाँ आपने डेड सेंटर में फोटोग्राफ ले लिया, अब उसको रूल ऑफ थर्ड में एडजस्ट करना है, करना पड़ेगा, रिकम्पोज करना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है।
है।